Hello everyone. Today we will study chapter number 6, Changes Around Us. In this one chapter we will study about reversible change and irreversible change, physical and chemical changes, and expansion and contraction of substances. As we know that one, we can see different types of changes which are occur. Likewise, raw mango changes into ripened mango. uh, Water which is in liquid state converts it into or change it into solid state or gaseous state. uh, Changes in climate and seasons, a baby grow into an adult. So all these are the different types of changes. First, reversible change. Reversible changes are the changes in which we get back the original substance by changing the conditions. ये वो चेंज होते हैं जिसके अंदर हमें हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस जो है वो वापस से मिल जाता है. नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म ड्यूरिंग और आफ्टर द चेंज. इसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. रिवर्सिबल चेंजेस जो होते हैं दे आर टेम्परेरी एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस ऑल्सो डू नॉट चेंज. एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस: folding of paper, rolling out a chapati from a ball of a dough, stretching of rubber band to its normal size, melting of ice, melting of butter, freezing of ice. सपोज आप लोग डिस्कस करते हैं अपन वन बाय वन. जैसे स्ट्रेचिंग ऑफ रबर टू इट्स नॉर्मल साइज. व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड तो इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज एज द रबर बैंड रिवर्ट्स टू इट्स नॉर्मल शेप व्हेन इट इज़ रिलीज्ड. जब आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो और उसके बाद में आपने उसको वापस से छोड़ दिया तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है. मेल्टिंग ऑफ आइस, व्हेन इट इज़ kept on room temperature it starts melting, whereas when you kept it in the freezer so again it will start changing into ice or the solid state. Same with the melting of butter. Irreversible changes, the changes in which we cannot get back the original substance. वो change जिसमें हमें हमारा original substance जो है वो वापस से नहीं मिलता है. यहाँ पे क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस. Thus, the property of the substance change and these types of changes are permanent. इस रिवर्सिबल चेंजेस में क्या होता है कि हमें हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस वापस से नहीं मिल रहा, नया सब्सटेंस बन रहा है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी सब्सटेंस की वो भी चेंज हो जाती है. एग्जाम्पल्स ऑफ irreversible changes are ripening of fruits, curdling of milk, cooking of food, burning of paper, growth of an organism, rusting of iron. Once a fruit become ripen तो you can't change back into it raw stage. एक बार फ्रूट पक गया, राइपन हो गया तो वो वापस से कच्चा फ्रूट नहीं बन सकता है. सेम विथ कर्डलिंग ऑफ मिल्क, वी कैन नॉट गेट बैक द मिल्क वंस द मिल्क इज टू बी चेंज इनटू कर्ड. कुकिंग ऑफ फूड, अगर आपने फूड को कुक कर लिया तो आप उसके वापस से जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको रॉ स्टेज में नहीं ले जा सकते. बर्निंग ऑफ पेपर के अंदर भी जैसे वंस पेपर इज टू बी बर्न it changes into ash and from ash you can't turn back into normal paper. Same with the growth of an organism. जैसे बेबी है वो बड़ा हुआ, एडल्ट हुआ, उसके बाद में वो ओल्ड एज में गया तो यहाँ पर चेंज हो रही है, उसकी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है तो आप उसको वापस से चाइल्ड स्टेज में या बेबी स्टेज में वापस नहीं ले जा सकते. Physical change, a change brought about the physical properties of a substance. In this one changes also no new substance is formed. Molecular composition of the substance जो था it remains same, whereas the change in the size, shape, color becomes changed. Most of the physical changes जो होते हैं वो reversible होते हैं. Examples है melting of ice, glowing of an electric bulb, tearing of paper, crushing a can, melting an ice cube, boiling water, mixing sand with water, breaking glass. So all these are the example of physical changes. Other examples देखें जैसे melting of ice, we can easily get back the solid ice from liquid water by cooling or when you kept the water in freezer. So it again changes into
solid state and there is no formation of a new substance. Same when you cut an iron rod into pieces. In that one case also no new substance is to be formed. The cut pieces of iron are the same as the iron rod. मीन्स उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आया, केवल फिजिकल प्रॉपर्टी में मीन्स उसकी साइज में या शेप में चेंज हुआ है. Along with that one there will be no formation of any other substance. Tearing of paper, this is also a physical change. When you torn the pieces, these are the same property of the paper, but only there will be a change in the size of the paper. Chemical change, these are the changes in which new substance are formed and both physical and chemical property of the original substance change. जबकि हमारा फिजिकल के अंदर तो क्या था, उसकी केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही थी. इन दिस टाइप ऑफ चेंज molecular composition of the substance is changed, more heat is absorbed and liberated, and most of the chemical changes जो होते हैं these are permanent and irreversible. Examples हैं digestion of food, cooking of food, burning of wood. Digestion of food means when the food is to be digested means उसके अंदर क्या हुआ, कुछ chemical changes हुए हैं और अब आप उससे वापस से उसको उसके इंग्रेडिएंट्स थे जो फूड जिसको डाइजेस्ट हो गया फूड, अब वापस से नहीं लेकर के जा सकते. कुकिंग ऑफ फूड, इसमें भी क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस, नया बन गया और जो कि डिफरेंट है फ्रॉम द ओरिजिनल इंग्रेडिएंट से, क्योंकि जो आपने यूज़ में लिए कुकिंग के अंदर वो आपके रॉ इंग्रेडिएंट्स थे, लेकिन वंस यू आर कुक दिस वन तो इट बिकम्स changed into a cooked food and you can't get back the ingredients back. So this is an also example of chemical change. Other examples आता है iron rusting, burning wood, मेटाबॉलिज्म अभी हमने डिस्कस किया था, डाइजेशन के में आ जाता है, कुकिंग एन एग, बेकिंग केक. फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में डिफरेंसेस क्या रहते हैं. A change in matter which occurs without causing any change in the composition of the matter, we call it as a physical change, whereas a chemical change is the change in the chemical composition of matter. Physical changes जो होते हैं they are mainly reversible in nature, whereas chemical changes are irreversible. Physical changes जो होते हैं they are temporary, whereas the chemical changes are permanent. No new product or the substance are formed when an object undergo physical change, whereas in chemical changes often lead to formation of a new products or the substances. These changes have no impact on the molecular composition of the substance, whereas in chemical change have a direct impact on the chemical bond and molecular composition of a substance. Expansion and contraction. एक्सपेंशन मीन्स होता है इंक्रीज इन दी साइज ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग. किसी भी सब्सटेंस की जो साइज़ है जो वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, किसके कारण, हीटिंग के कारण, तो उसको हम बोल देते हैं एक्सपेंशन. इसमें क्या होता है, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब हम किसी को टेम्परेचर दे रहे हैं या हीट कर रहे हैं, द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस एक्सपेंड्स और बिकम्स लूज, तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, वो एक्सपेंड हो जाएंगे, फैल जाएंगे और वो लूज हो जाएंगे. व्हेन दिस हैपन द मटीरियल सेट टू अंडरगो एक्सपेंशन. अपोजिट ऑफ दैट वन आ जाता है कि द डिक्रीज इन द साइज ऑफ अ सब्सटेंस ऑन कूलिंग, जब किसी सब्सटेंस की साइज में डिक्रीज होना मतलब कम हो जाता है, इसके कारण, कूलिंग के कारण, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन. व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेज द पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट और बिकम्स टाइट, एंड व्हेन दिस हैपन द मटीरियल इज सेट टू अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन. द अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वेरीज इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज. कितना कौन सा मटेरियल जो है वो एक्सपेंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वेरी करता है अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर. सॉलिड के अंदर अलग होगा, लिक्विड में अलग होगा और गैसेस में भी अलग होगा. नाउ वी विल स्टडी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. फर्स्ट इज ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड्स जो होते हैं वो बहुत लीस्ट, बहुत कम एक्सपेंड भी होते हैं और कम ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. Just we will study with the help of an example. Iron tools,
फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया ट्रॉवल, व्हेन वी आर गोइंग टू हीट इट, इसको जब हम हीट करते हैं, बिफोर दे आर फिटेड विद द वुडन handles. Due to heating, the iron tools expand and the ring present at the center of such tools increase in diameter, so the wooden handle can be easily fixed into the ring. आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स के टूल्स होते हैं या अदर आयरन के जो टूल्स होते हैं, उनको जो मेन टूल होता है वो तो बना हुआ होता है मेटल का, जबकि उसका हैंडल जो बनाता है वो होता है वुड का। यहीं पे हम कंसेप्ट यूज़ में लेते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर वाला काम भी काम लेते हैं हम हीट के लिए। तो क्या होता है कि जब हम उसको आयरन टूल को हीट करते हैं, हीट करने से क्या होगा कि वो, या हम उसको जब टेम्परेचर देंगे तो वो आयरन टूल क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, और उसके अंदर जो रिंग प्रेजेंट है उसका क्या है, डायमीटर भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और आप उसके ऊपर इजीली वुडन का हैंडल जो है वो फिक्स कर सकते हो। सेम विथ कॉन्ट्रैक्शन, जो सॉलिड्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी कम होते हैं, लीस्ट होते हैं। एज द आयरन टूल्स कूल, द रिंग कॉन्ट्रैक्ट टू इट्स ओरिजिनल डायमीटर एंड इट फिट्स फर्मली ऑन टू दी वुडन हैंडल। जब हमने आयरन टूल को हीटअप किया था, टेम्परेचर दिया था, तो वो क्या हुआ था, एक्सपेंड हो गया था, और उसके ऊपर हमने वुडन हैंडल को उसकी रिंग के ऊपर इजीली एडजस्ट कर दिया। अब जैसे जैसे ये आयरन टूल कूल होगा, ठंडा होगा, तो वो रिंग क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और अपने ओरिजिनल डायमीटर में आ जाएगी, और वो इजीली आयरन टूल के ऊपर फिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट आता है लिक्विड्स। लिक्विड्स जो होते हैं वो लेस, कम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कम ही एक्सपेंड होते हैं। जैसे एग्जांपल है, व्हेन मिल्क बॉयल इट स्पिल्स आउट ऑफ द कंटेनर इफ़ द बर्नर इज़ नॉट टर्न ऑफ, दिस इज़ ड्यू टू एक्सपेंशन। जो मिल्क है वो बॉईल हो रहा है कंटेनर के अंदर, और वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद में वो क्या होगा, स्पिल ऑफ, बाहर आना गिरना शुरू हो जाएगा अगर हमने बर्नर को टर्न ऑफ नहीं किया है। तो वो किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू एक्सपेंशन। सेम विथ कॉन्ट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो लिक्विड्स जो हैं वो लेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब हमने बर्नर को क्या किया, टर्न ऑफ कर दिया, तो उससे क्या होगा, द सप्लाई ऑफ हीट जो है वो कट ऑफ हो गई, और जो लिक्विड था जो एक्सपेंड हो रहा था उसी के कारण स्पिल ऑफ हो रहा था कंटेनर से, वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, एंड द मिल्क बिगेन टू कूल डाउन, ड्यू टू कूलिंग द मिल्क कॉन्ट्रैक्ट एंड कम बैक टू इट्स प्रीवियस लेवल। गैसेस जो है वो मोस्ट मतलब ज़्यादा ही एक्सपेंड भी होती है और ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट भी होती है। इसमें एग्जांपल लेते हैं हम इन्फ्लेटेड बलून का। जो फूला हुआ बलून होता है वो इन्फ्लेटेड, तो इन्फ्लेटेड बलून्स बर्स्ट व्हेन कीप इन ब्राइट सनलाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने देखा भी होगा कि अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक धूप के अंदर अगर कोई भी इन्फ्लेटेड बलून, फुला हुआ बलून हम छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद में बस्ट हो जाता है। और वो किस लिए हो रहा है, दिस इज़ बिकॉज एयर एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सनलाइट एंड एक्सपेंड। बलून के अंदर क्या फिल है, एयर है, या हम कह सकते हैं गैस फिल है। तो वो क्या हुई, ड्यू टू सन्स हीट इट बिकम्स हीट अप एंड एक्सपेंड। वो उसने सन की जो हीट थी उसको एब्जॉर्ब किया और वो एक्सपेंड हो गई, फैल गई। सो द एक्सपेंशन ऑफ एयर इनसाइड द बलून कॉजेज इट टू बस्ट, और उसके कारण बलून क्या हुआ, बस्ट हो गया। सेम विथ, हम जब हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं कि इफ़ द इन्फ्लेटेड बलून इज़ प्लेस्ड इन ए बाउल कंटेनिंग कोल्ड वाटर, हमने हम वापस से कोई भी इन्फ्लेटेड बलून लिया, उसको हमने ठंडे पानी के बाउल के अंदर रख दिया, तो क्या होगा, जो गैसेस प्रेजेंट इनसाइड द बलून विल कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ जाएगी, और बलून विल श्रिंक इन साइज, बलून जो है वो साइज में श्रिंक हो जाएगा, एज सीन इन द डायग्राम ऑल्सो। Real life applications of expansion and contraction. Blacksmith make iron tools by heating iron as it becomes soft on heating and can be beaten into desirable shapes. आपने देखा होगा कि जो ब्लैक स्मिथ लोहार होते हैं वो आयरन टूल्स को क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं। उससे क्या होता है, आयरन जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, और आप उसको बीट करके उसको वॉट एवर शेप यू वॉन्ट यू आर एबल टू कन्वर्ट इट। आप अपनी डिज़ायर के अनुसार जो भी शेप में आपको चाहिए आप उसको कन्वर्ट कर सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल आता है, ये भी अगेन बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। मेटल रिम्स ऑन द व्हील्स ऑफ अ वुडन कार्ट कैन बी फिटेड बाय यूजिंग द सेम प्रिंसिपल। आपने देखा होगा जो भी बुलक कार्ट होती हैं या कोई वुडन कार्ट है उसमें
जो व्हील होता है वो तो बना हुआ होता है वुड का, और उसके बाहर एक रिंग लगी हुई होती है, वो होती है मेटल की। तो उससे क्या होता है, जब ऑन हीटिंग द मेटल रिम एक्सपेंड्स, जब हम उसको हीटअप करते हैं तो मेटल की रिम है वो एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है, और वो इजीली व्हील के ऊपर, जो कि वुड का बना हुआ है, उसके ऊपर स्लिप होकर के चढ़ जाती है। और व्हेन वी आर गोइंग टू कूल इट, जब हम उसको कूलिंग करते हैं तो मेटल रिम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टाइटली फिट्स इनटू द कार्ट व्हील। जब वापस से वो ठंडा होगा तो मेटल रिम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होएगी, सिकुड़ेगी, और वो व्हील के ऊपर प्रॉपरली फिक्स हो जाएगी। थर्ड एग्जांपल आता है, रेलवे ट्रैक्स आर लेड विद गैप्स इन बिटवीन देम। जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं आपने देखा होगा, उसके बीच में गैप छोड़ा हुआ होता है। एंड वाई वी लीव दिस वन गैप, बिकॉज इफ़ द रेलवे ट्रैक्स आर फिक्स्ड विदाउट एनी गैप्स, अगर हमने उसमें कोई भी गैप नहीं दिया तो क्या होगा, ड्यूरिंग द समर सीजन, or we can say that when train is passed out on the from the track, so during this also heat generate, and uh, that one gaps become sorry tracks becomes expand। क्यों, क्योंकि जो उसको हीट मिल रही है और वो मेटल का बना हुआ है, तो वो क्या होगा, एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। एंड इफ़ देयर विल बी नो गैप, अगर वहाँ पे गैप नहीं होगा तो वो जो ट्रैक क्या होगा, इट बिकम्स बैंड एंड इट मे कॉज एक्सीडेंट। सो वी विल लेफ्ट द गैप्स इन ऑर्डर टू अलाउ एक्सपेंशन ड्यूरिंग हॉट वेदर। तो इसीलिए हम वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स के बीच में गैप छोड़ते हैं, ताकि जब भी वो गर्मी के कारण, सर गर्मियों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, या नॉर्मल टेम्परेचर में भी, जब एनवायरनमेंट में टेम्परेचर नॉर्मल है लेकिन उसके ऊपर से जब ट्रेन पास आउट हो रही है तो हीट जनरेट होती है, तो उसके कारण भी जो ट्रैक क्या है वो एक्सपेंड होता है, फैलता है, और अगर ये गैप होगा तो वो फैल करके उस गैप को कवर कर देगा, और ट्रैक जो है बैंड नहीं होगा, और एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। टाइटली जैम जो मेटल लिड्स होती हैं फूड जार कैन बी ओपन ईजिली बाय पोरिंग हॉट वाटर ओवर द लिड, और बाय डिपिंग ओनली द लिड पोर्शन ऑफ द जार इनटू द हॉट वाटर। आपने देखा होगा कि आपके जैम के कैंस होते हैं, या कोई फूड जार है, केचप का जार है, जिसका कि कवर तो क्या है, या लिड जो है वो मेटल की बनी हुई होती है, और वो कई बार जाम हो जाती है, वी कांट एबल टू इजीली ओपन इट। तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, आप या तो उस कंटेनर को उल्टा करके गर्म पानी के अंदर रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो वो जो लिड वाला पोर्शन है उस साइड से, तो वो थोड़ी देर बाद में इजीली ओपन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो मेटल की लिड है वो एक्सपेंड हुई है। या हम उस जैम्ड कंटेनर के ऊपर भी हॉट वाटर डालेंगे तो भी वी आर एबल टू इजीली ओपन इट। लास्ट आता है कि ऑन हीटिंग मरकरी एक्सपेंड्स ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इट इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर। हमने देखा होगा जो भी हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं उसके अंदर हम लोग मरकरी यूज़ में लेते हैं। और मरकरी क्या होता है, मेटल है, लेकिन ये जब हम उसको जब भी टेम्परेचर मिलता है, या हम बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए काम में ले रहे हैं, तो वो क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको थर्मामीटर में यूज़ में लिया जाता है। और जब वापस से टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, या आप बाहर रख रहे हैं, आप मतलब बॉडी का टेम्परेचर मेज़र नहीं कर रहे हैं, तो वो वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सो ऑल दीज अबाउट different types of changes around us in this one chapter. Thank you.